Pretty much what we expected today to happen to South Africa to win the match, but definitely not this fight which we expected. But Pakistan somehow showed some grittiness and intent at the very last of the match when they were fighting the tailenders to give their wickets. But at the end, Keshav Maharaj had the last laugh. He scored a 4 runs and made South Africa win by just 1 wicket. I have with me Kaustav to discuss about the same. Kaustav, this match has been something which Pakistani really want to win this match because that way their survival would have continued in the tournament. Those they still have. It's not that they're out of the tournament, but it is going to be really very, very difficult for them to do it. And I think Pakistan has a lot to learn from here, but I would like to know your opinion on this match and the way they have played today and what exactly, according to your opinion, has went wrong and right for them. I think plenty of wrongs, to be very honest. If we talk about batting, then again, so many wrongs. I think Babar Azam scoring half century but couldn't fail to capitalize, and then again Short City scoring an half century and immediately getting back to the pavilion. I think these are the two errors that I think Pakistan have suffered. And again, talk about the openers, they are not clicking at all. Abdullah Shafiq started well, but then again got out. Imam ul Haq, he's not being informed for a long time now, but I think Pakistan, right now they can consider bringing Fakhar Zaman in. We know he hasn't performed for a long time in the ODI setup, but I think it is time for him to come in, replace Imam ul Haq, because Imam is a good player, but then again he is not performing at the moment. And the conditions in Kolkata, where Pakistan will play their next 2 matches, not next to probably 2 out of 3. I think the conditions will really favor the batters. So I think Pakistan can consider certain changes in the batting unit. But talking about the bowling, I think they didn't look really well, to be very honest. They more or less depended on individual brilliance. I didn't see any plan as such to execute. Shaheen Shafridi doing the whatever he's doing. I think picking 3 wickets, 2 important wickets of Quinton de Kock and David Miller. I think those 2 wickets, especially David Miller's wicket and then Aiden Markram's wicket, I don't remember who took that. I think these 2 wickets brought Pakistan back into the game, and then again against tailenders, they have the quality to put them under trouble, so to say. But even so, 1 wicket remaining, Harris dropped and Wasim Jr. was bowling. This should have done the job, I believe, because again, you don't think about Keshav Maharaj or Tabrez Shamshi as players who can score 20-30 runs, so to say. With so much pressure, the crowd was supporting Pakistan throughout. I think they should have get the job done, and it's really unbelievable that they failed to do so. Because the conditions, I think the atmosphere was there, proper atmosphere and all these things for them to get the job done. Yeah, exactly. I was seeing like at every boundary which Pakistani batter has scored, or even every wicket which Pakistani bowler has taken, they all were like very excited to take, because at the end, every like Indian, whoever is in there watching the match, they all wanted Pakistan to win because we want an India-Pakistan match. Come on, we all are rooting for it, and that's particularly the reason why we were backing them, because we want them to survive in the tournament so that we can get to see another clash of India-Pakistan. But I think this is a difficult journey, not for them. They must be disappointed, the Pakistani fans and the cricketers, but we are also disappointed as Indian fans because we really wanted this clash to happen. But what is in my hand right now is to make you see a match summary of this clash between South Africa versus Pakistan, which was like quite I would say ups and downs were there. In Pakistan, first of all, they started off with the batting. They have scored 270 runs by giving 10 wickets. 46.4 overs, they got all out. South शकील ने जहां 52 रन्स बनाए, बाबर आजम ने 50 रन वहां पर स्कोर किए, जो कि काफी समय से इनका बल्ला नहीं चल रहा था. तबरेज शमसी ने 4 विकेट लिए 60 रन देकर के, जो कि एक बहुत ही अच्छी आउटिंग रही है उनकी तरफ से. वही मार्को येंसन ने 3 विकेट लिए आउट ऑफ 43 रन्स इन जस्ट 9 ओवर्स. वही जब साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी की बारी आई, 271 रन स्कोर करके टोटल जो स्कोर था उसको चेस किया. 9 विकेट्स देकर लास्ट विकेट के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी. वही अगर बात करें साउथ अफ्रीकन एंड की, तो एडन मार्करम ने 91 रन ऐड किए हैं, व्हिच वाज अ ह्यूज नंबर, बिकॉज और कोई बैटर इतना टिक नहीं पा रहा था. वही डेविड मिलर की बात करें, उन्होंने 29 रन बनाए, सेकंड मोस्ट रन बनाए. आज उनसे बहुत उम्मीदें थी, बट अल्टीमेटली उनकी जो बैटल थी विद शाहीन अफरीदी वो जीत गए. वहीं शाहीन की बात करें, उन्होंने 3 विकेट लिए और उसामा मीर के हाथ
2 विकेट लगे और इन ऑल साउथ अफ्रीका ने ये मुकाबला मात्र 1 विकेट जीता। Now I would like to bring that part, Kaustav, जहाँ पर हम बात करेंगे जब 20 बॉल्स रह गए थे आउट ऑफ 20 रन्स रह गए थे आउट ऑफ 50 बॉल्स, और वो कितना क्रूशियल था। एक एक बॉल काफी इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान की बॉलर्स लगातार कोशिश कर रहे थे टू ब्रिंग इन सम न्यू बॉल्स बिकॉज दे वांट कि भाई वो टेलेंडर्स है, उनको आप किसी भी बॉल से डरा सकते हैं और किसी भी तरीके से उनको रोक सकते हैं। इवन दैट कैच जो हारिस रॉफ ने लास्ट में लिया भी लुंगी एनगेटी का, दैट वाज सो ब्रिलियंट। वो देख के लग रहा था कि दैट दे रियली वांटेड दिस टू हैपन। और एक अपील भी हुई थी हारिस रॉफ के ही ओवर में, जहां पर रिजवान को, बाबर को, सबको लग रहा था कि वो शायद वाइड बॉल नहीं है, इवन वो टच होकर के आई है तो वो कैच हो सकता है और एक विकेट मिल सकता है, बट दे वर सो डिसअपॉइंटेड जब पता चला कि इट्स एन अंपायर्स कॉल। बट आई थिंक दैट्स समथिंग जो लास्ट के टाइम पे हमें इंटेंट दिखाई दी, अगर वो इंटेंट थ्रू आउट मैच रहती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता था। हाँ, आई थिंक यही पॉइंट मैं बता रहा था पहले कि इंटेंट टुवर्ड्स द एंड बहुत ज्यादा था। आई थिंक ना बैटिंग से उतना इंटेंट था, ना बॉलिंग से उतना इंटेंट था। क्विंटन डिकॉक ने ऐसा बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था बैटिंग पे, उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी ने एक विकेट लिया, उसके बाद कुछ था नहीं। उसके बाद फिर कुछ ओवर्स के बाद 2 विकेट आउट गिर गए। रसिल एंडरसन का विकेट बहुत कंट्रोवर्शियल था, पूरा इंटरनेट उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक उसके अलावा मैच में कुछ था नहीं। साउथ अफ्रीका बहुत इजीली मैच जीत रहा था, बट आई थिंक वो जो 2 विकेट गए, आई थिंक एडन मार्करम का भी गलती था थोड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मैच जीत रहे हो, आपके पास उतना अच्छा बल्लेबाज है नहीं आगे जाते हुए, तो आई थिंक उस टाइम पे वो शॉट खेलना थोड़ा इमैच्योरिटी था मेरे हिसाब से। आई थिंक थोड़ा टाइम लेके मैच खत्म करके आ सकता था, अपना सेंचुरी भी मिस किया इन द प्रोसेस। तो आई थिंक उसके बाद 2 विकेट जब गिरा, आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा हौसला मिला उन लोगों को कि ये मैच में जीत भी सकता हूँ। आई थिंक उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलिंग किया, दिखाया कि वो एक लीडर है, सच्चा लीडर है पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट का, और आई थिंक उसका स्पेल बहुत अच्छा था, इसीलिए पाकिस्तान को लगा कि हम लोग मैच जीत सकते हैं। उसके बाद से आई थिंक वही मोटिवेट किया बाकी सारे बॉलर्स को, और कैप्टन बाबर आजम को उसके बाद हम लोग रिजवान को भी देखे बहुत उछल कूद कर रहा था, हैप्पी कर रहा था। तो आई थिंक हाँ, शाहीन शाह अफरीदी का उस स्पेल की वजह से आई थिंक मोटिवेट हुआ, एंड देन पाकिस्तान थॉट यस दे कैन डू इट, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। अंपायर्स कॉल की वजह से नहीं हुआ या फिर कुछ भी कारण हो, आई थिंक लास्ट में जब उन लोगों के पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं बचा था, फिर स्पिनर के पास जाना पड़ा। आई थिंक दैट प्लेड अ रोल एज वेल, वरना आई थिंक पेसर्स वर डूइंग देयर बिट। शाहीन शाह अफरीदी का भी स्पेल बहुत जल्दी खत्म हो गया। आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको उनको बॉलिंग कराना ही था। जैसे बॉलिंग कर रहा था, उनको 1-2 विकेट और मिल जाता तो डेफिनेटली तभी गेम ओवर था। So I think captaincy towards the very end, yes, it was good from Babar Azam. He didn't have a lot of option, but initially I was really surprised with certain things, field placements as well. Body language, one of those things. I think Babar Azam का खुद का body language बहुत खराब था। जब साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट जीतने वाला था, हम लोग देखे कि बाबर आजम बाहर बैठा हुआ था। मे बी आपको आप टायर्ड हो सकते हो, गर्मी बहुत है, या फिर आपको कहीं जाना होगा, वॉशरूम जाना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर out, but I don't think so at that point the captain should be out of the ground and sitting in the dugout. I think वही एक body language की भी बहुत कमी लगा। fielding again poor effort from Pakistan fielders. A lot of room for improvement. If they have to qualify for the next round, then yes, of course they have to depend on other teams, but they need to improve a lot, especially batting and fielding. If bowlers keep on with this momentum, I think they will do good. But batting and fielding, I think there's miles to go. Also, a lot of people were questioning Babar Azam's captaincy at the end as well, when they were saying कि इस गेम को इतना डीप ले जाने की जरूरत क्या थी। जब आपको एडन मार्करम का विकेट मिल गया था, तो इवेंचुअली आपने, जब आपको टेलेंडर्स मिल रहे थे बैक टू बैक, तो उस वक्त आपका अटैक ऐसा होना चाहिए था कि आपको टेलेंडर्स का विकेट लेना है। बट आपने देखा पाकिस्तान की बॉलिंग हम सब जानते हैं वर्ल्ड क्लास कही जाती है, एंड दे हैव सच बॉलर्स, बट टेलेंडर्स का विकेट नहीं ले पा रहे थे। तो डू यू सी कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद बाबर आजम स्ट्रेटजी, या फिर एक्चुअली बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि वो अपनी कोई स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर पाते, या कोई स्ट्रेटजी थी भी फॉर दैट मैटर? स्ट्रैटेजी आप कुछ उस मामले में बोल नहीं सकते हो, क्योंकि बाबर आजम ने उसके बाद तो चलो पेसर्स को ही बॉल कराया। आई थिंक पेसर्स को बॉल कराना ही सही डिसीजन था। कभी कभार हम लोग देखे कि मोहम्मद नवाज का भी स्पेल था, एक छोटा सा 1 या 2 ओवर का। आई थिंक आप उस टाइम स्पिनर को जस्ट बॉल कर रहे थे जिससे कि पेसर्स का प्रोलॉन्ग हो जाए अपना ओवर्स। आई थिंक उसी एक कारण हो सकता है, अदरवाइज स्पिनर्स बॉलिंग एट दैट टाइम डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. Other than that, towards the end, I won't say there was the match was out of Pakistan's hand, and all of a sudden it came to their hand, and they had to do something out of it. And Babar Azam, जो भी अवेलेबल था ऊपर फेंकता गया. But South Africa, I think players deserve some credit as well. The way
Shamshi and I forgot his Literally. name, Maharaj. Shamshi and Maharaj kept their calm and did the job. I think it was phenomenal from them, and Shamshi's celebration towards the end, depicts the Yeah. story of what happened. And we all were waiting for one close game. We were even talking about possible super over. If we can see a super over, we saw it like the finals of last World Cup, and then again, if we could have seen something like that, it would have been great. But then again, the match was epic, and I think this is one for the ages. या एग्जैक्टली और जिस तरीके का मुकाबला रहा है काफी इंटेंस था सभी जो क्रिकेट फैंस हैं उनको तो बहुत मजा आया होगा बट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग एंड द सेकंड इनिंग मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट इनिंग की टॉप परफॉर्मेंस हमारे आज के कौन थे दैट वाज हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से शॉट शकील और तबरेज शमसी शॉट शकील ने जहां एक तरफ 52 रन बनाए आउट ऑफ 52 बॉल्स वहीं तबरेज शमसी ने 4 विकेट लिए और उसी के चलते उनको इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एट हिज पार्ट और सेकंड मैंने देखा एडन मार्करम वाज देयर एंड डेफिनेटली ही वाज वन पर्सन जिन्होंने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को संभाल करके रखा बिकॉज इवेंचुअली कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा था जैसे हमने देखा सेकंड बिगेस्ट स्कोर डेविड मिलर के नाम था 25 रन का बट एडन मार्करम की जो पारी थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लिए नाउ आई वुड लाइक टू आस्क दिस Costa if we talk about the South African batting itself मार्को येंसन वाज डूइंग अ वेरी गुड बैटिंग एंड इनिशियली जब वो छक्के चौके लगा भी रहे थे और लग रहा था देख कर कि ही इज गोइंग टू प्ले जैसे हमने देखा है कई बार आई एम नॉट गोना कंपेयर बट स्टिल मुझे थोड़ी युवराज सिंह की याद आ रही थी जो 2011 वर्ल्ड कप में हमने उनको देखा कि आते थे प्रेशर रिलीज करने के लिए छक्के चौके लगाते थे मार्को येंसन के भी वैसे करते हुए देखा बट द मूवमेंट वो थोड़ा सेटल अप होते हैं अब ना देयर इज अ डिफरेंस युवराज सिंह जब आते थे तो ही यूज्ड टू स्टे देयर एट द क्रीज बट मार्को येंसन नहीं रुके वो आए छक्के चौके लगाए वो चले गए जहां पर उनसे उम्मीद थी कि शायद वो कुछ गेम को बदल देंगे उठाकर साउथ अफ्रीका के पक्ष में लाकर कंप्लीटली रख देंगे बट वहां पर उनका विकेट चला गया आई थिंक देयर इज समथिंग एट साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर एज वेल कि आपका टॉप ऑर्डर जब बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है तब तो आपको टेस्ट होने की जरूरत पड़ती नहीं और आज जब टेस्टिंग सिचुएशन थी तो अदर देन एडन मार्करम ज्यादा कोई बैट्समैन ऊपर आकर खेल नहीं पाया उस चीज को बचा नहीं पाया आई थिंक आप मार्को येंसन को पॉइंट आउट अभी इस मामले में नहीं कर सकते क्योंकि आई थिंक लास्ट मैच या उसके पहले वाले मैच में मार्को येंसन एक हाफ सेंचुरी जा रहा था 62 या 64 रन मारा था तो उनके पास डेफिनेटली कैपेबिलिटी है बट जो ही पॉइंट में पहले बोल रहा था कि आई थिंक साउथ अफ्रीका मैच को थोड़ा इजीली ले लिए the way Marco Jansen or Aiden Markram got out, I think that was very immature of them to get out in that fashion because आपके पास उनको लगा होगा शायद कि मैच हमारे हाथ में है अभी हम थोड़ा आई थिंक जल्दी रन बना सकते हैं और जल्दी मैच खत्म कर सकते हैं रन रेट इंप्रूव कर सकते हैं आई थिंक ये सारे थॉट शायद आए होंगे बिकॉज दोनों ही मार्को येंसन जैसे आउट हुआ कि छक्का मारा चौका मारा तीसरे बॉल पे आउट आई थिंक बहुत खराब शॉट जजमेंट था आपके पास ऑलरेडी 10 रन आ चुके ओवर का तो आपको कोई जरूरत नहीं था उस टाइम इतना एक्सेलरेट करके मारने के लिए तो आई थिंक थोड़ा इमेच्योर लगा आई थिंक सीखने को मिलेगा कि कैसे अभी हम लोगों को मैच खत्म करना पड़ेगा बिकॉज टेलेंटर्स बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं और मार्को येंसन लास्ट ऑलराउंडर आप बोल सकते हो बैटर जो बैटिंग कर सकते हैं सही से उसके बाद आपके पास उतना ऑप्शन है नहीं कगिसो रबाडा आज के मैच में था नहीं जो थोड़ा बहुत और बेटर बैटिंग कर सकता है तो आई थिंक मार्को येंसन जो लास्ट प्लेयर है जो अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं आई थिंक उनको थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपको चौका छक्का मार के मैच खत्म करना पड़ेगा आई थिंक अगेन सेम गोज विद एडन मार्करम 91 पे थे अब आपको कोई जरूरत नहीं था वो शॉट खेलने के लिए आराम से मैच जीत सकता था साउथ अफ्रीका लेकिन खुद ही आई थिंक ज्यादा अपने आप को ट्रबल में लाया और फिर मैच जीत गया तो वेल एंड गुड अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ बिग शॉक बिकॉज they were completely into the game they were very close to the winning margin and then if you bottle like that like again chokers like शायद आ जाता फिर से साउथ अफ्रीका की राइट इट वाज समथिंग जो हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं मुकाबला इधर जाएगा कि उधर जाएगा बट अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका मैनेज टू विन द मैच एंड साथ ही साथ वो अब टेबल टॉपर्स भी हो चुके हैं पॉइंट्स टेबल में एकदम टॉप पर आ चुकी है साउथ अफ्रीका व्हिच इज लाइक सभी चाहते हैं वो स्पॉट अभी तक इंडिया के हाथ में था बट अभी साउथ अफ्रीका के हाथ चला गया है और पाकिस्तान जैसे कि पहले भी पॉइंट्स टेबल में ज्यादा ऊपर नहीं थे अभी भी वो इस वक्त हम देख सकते हैं छठी पोजीशन पर है एंड नाउ इसके नीचे की जो पोजीशन पे जितने भी टीम है उनके लिए तो रास्ता डिफिकल्ट है ही बट पाकिस्तान के लिए भी इक्वली डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा है अब देखते हैं टूर्नामेंट कैसे फेयर आउट होता है कौन टीम्स एंड अप करती हैं एज टॉप 4 बट तब तक मैं आपको दिखाती हूँ सोशल ट्रैकर जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको हमारे वायरल ट्वीट जो कि इस वक्त हो रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर तो ये है हमारा पहला ट्वीट आज के इस सेशन का they showed Mickey Arthur's face when Dil Pakistan was playing in the stadium just to make sure he can't say that Pakistan lost because of this. So this has been making rounds. जो Mickey Arthur का statement था, he said in India Pakistan match as well.
कि दिल दिल पाकिस्तान सॉन्ग नहीं बजा है इसलिए प्लेयर्स मोटिवेटेड नहीं थे और ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी अप्लाई, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट। बट आज के मुकाबले में शायद डीपीओ को लगा कि ठीक है, हो सकता है अगर ये रीजन है तो फॉर इंडिया पाकिस्तान मैच हम ये भी कर सकते हैं, बट आई थिंक स्टिल इट डिड नॉट हेल्प दैट मच जितनी सोची जा रही थी। देखते हैं अगला ट्वीट आज के इस मुकाबले से जुड़ा। चौके ले लो बाय हारिस रॉफ, सिचुएशन राइट नाउ। और डेफिनेटली जब ये बॉलिंग को आए और मार्को येंसन जिस तरीके से रन बना रहे थे, इट वाज लाइक क्वाइट द सिचुएशन एट दैट टाइम। व्हिच टीम दिस गाय सपोर्ट्स टुडे? सो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान इज दिस। ही इज मॉनी मॉकल जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये मुकाबला था। डेफिनेटली अ टफ थिंग फॉर हिम, बट वी कैन सी द काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाज ऑन हिज फेस जब पाकिस्तान ये मुकाबला हारा था और उनके बुकलेस विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, तो काफी हद तक एविडेंट था। एंड आई थिंक शायद उनके अंदर कोई 1% खुशी हो कि चलो साउथ अफ्रीका जीत गई, बट पाकिस्तान के बाहर होने से काफी दुख होता है कि काम होता है, बाकी चीजें नेक्स्ट आती हैं। देखते हैं अगला ट्वीट। When our team is batting, it feels like our batsmen are about to get out. और जब bowling आ जाती है तो लगता है ही नहीं कि कोई बैट्समैन इनसे आउट होगा। This was a genuine reaction by a पाकिस्तानी फैन की जिस तरीके से टीम खेल रही है उस हिसाब से the kind of bowling and batting is happening at both the ends। देख के नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ भला होने वाला है इस टूर्नामेंट में, but I hope they make a comeback because इस तरह के reactions बनना बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। And mark my words, कल तक वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिएक्शन देखने को मिल भी जाएंगे, नहीं होंगे तो CricTracker करके मिल ही जाएगी। आपको दिखाते हैं अगला ट्वीट। दे एंड अस ऑन वी कैन सी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट शेयर हुआ था रिजवान और मार्को येंसन के बीच में। आई थिंक ये मूवमेंट सभी लोगों ने देखा भी होगा कि जिस तरीके से मार्को येंसन बॉलिंग करते हुए आते, कुछ तो कहते हैं रिजवान को व्हिच वी डोंट नो, एंड देन मार्को येंसन उनको हक करने के लिए एक साइन देते हैं कि अरे इट्स ओके, हैपेंस, ऐसा करके। सो दिस इज अ लाइक वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट, द वे ही स्माइल, आई रियली लाइक्ड रिजवान। Sometimes I even see I like Rizwan more than Babar because the way he bats and also the gestures he do. थोड़ा annoying है जब वो पीछे विकेट करते हैं, but इसके अलावा I really like him. But Kaustav, who is your favorite player out of the Pakistan team? Tough question. I think I would say Shaheen Shah Afridi because I think clutch player है, important time पे क्लिक करते हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम के छोड़ भी देते हो तो आई थिंक PSL में जैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है हर साल, अपने टीम को लीड भी करते हैं और शानदार खेलते हैं। आई थिंक अगर इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते तो आई थिंक बाबर आजम विल हैव टू स्टेप डाउन और विल बी रिमूव। Either ways, I think Shaheen Shah Afridi can be a good captain for Pakistan going forward. I think बहुत attacking है, attacking mentality के player है, जो बाबर आजम I think थोड़ा defensive है। I think that is one of the reasons behind Pakistan playing such poor cricket in this tournament. So I think Shaheen Shah Afridi, of course you can think about it because bowlers उतना captain बनते नहीं है। हम लोग देखें कि पैट कमिंस जब भी ODI क्रिकेट के बात कही जाए तो अगर पैट कमिंस अपने आप को उतना आगे नहीं लाते, जितना रेस्ट मिल सके उतना रेस्ट लेते हैं। और T20 टेस्ट क्रिकेट ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस अच्छा किया है अभी तक। T20 क्रिकेट उतना खेला नहीं है लास्ट वर्ल्ड कप छोड़ के। लास्ट वर्ल्ड कप में भी एरन फिच कैप्टन था। तो आई थिंक ODI क्रिकेट में शायद शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज as a pacer to play so many ODIs throughout the tournament it's difficult. But again, if you talk about my favorite player, then yes, it's probably Shaheen Shah Afridi because again, clutch player. Right. आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आपका फेवरेट पाकिस्तान का प्लेयर कौन है, एंड अगर आप रीजन बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बट कौस्तव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई होप साउथ अफ्रीका पाकिस्तान यहाँ से अपना अपना लेसन जरूर लेंगे बिकॉज टूर्नामेंट अभी काफी बाकी है। पाकिस्तान को जहाँ एक तरफ थोड़ा रिलाई करना पड़ेगा बाकी टीम्स के रिजल्ट में, वहाँ साउथ अफ्रीका के पास बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को टॉप 4 में बनाए रखने का। तो हो सकता है कि अपने इस कैंपेन को कंटिन्यू करें इन द सेम वे। बाकी हम चलते हैं, कल फिर से लौटेंगे। कल डबल हेडर है, डबल क्रिकेट होने वाला है, डबल मजा आने वाला है। हम फिर से लौटेंगे, डिस्कस करेंगे मोर एंड मोर अबाउट क्रिकेट। तब तक आप देखते रहिए CricTrackers इंडिया शो।